Active passive perfect. Present perfect tense active and passive. Active, I have eaten the cake. मैंने केक खा लिया है. Passive, the cake has been eaten by me. केक मेरे द्वारा खा लिया गया है. Active, she has written a letter. उसने एक पत्र लिखा है. Passive, a letter has been written by her. एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया है. Active, they have cleaned the room. उन्होंने कमरे को साफ कर लिया है. Passive, the room has been cleaned by them. कमरा उनके द्वारा साफ किया गया है. Active, we have completed the project. हमने परियोजना को पूरा कर लिया है. Passive, the project has been completed by us. परियोजना हमारे द्वारा पूरी कर ली गई है. Dot. Active, he has repaired the car. उसने कार को ठीक कर लिया है. Passive, the car has been repaired by him. कार उसके द्वारा ठीक की गई है. Active, you have answered the question. तुमने प्रश्न का उत्तर दे दिया है. Passive, the question has been answered by you. प्रश्न का उत्तर तुम्हारे द्वारा दिया गया है. Dot. Active, they have sold the house. उन्होंने घर बेच दिया है. Passive, the house has been sold by them. घर उनके द्वारा बेचा गया है. Active, she has drawn a picture. उसने एक चित्र बनाया है. Passive, a picture has been drawn by her. एक चित्र उसके द्वारा बनाया गया है. Active, the police have caught the thief. पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है. Passive, the thief has been caught by the police. चोर को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है. Active, he has bought a new phone. उसने नया फोन खरीद लिया है. Passive, a new phone has been bought by him. नया फोन उसके द्वारा खरीदा गया है. Past perfect tense active. Active, I had finished the work. मैंने काम पूरा कर लिया था. Passive, the work had been finished by me. काम मेरे द्वारा पूरा कर लिया गया था. Active, she had cooked dinner. उसने रात का खाना बना लिया था. Passive, dinner had been cooked by her. रात का खाना उसके द्वारा बनाया गया था. Dot. Active, they had painted the house. उन्होंने घर को रंग लिया था. Passive, the house had been painted by them. घर उनके द्वारा रंगा गया था. Active, he had solved the problem. उसने समस्या को हल कर लिया था. Passive, the problem had been solved by him. समस्या उसके द्वारा हल कर ली गई थी. Active, we had visited the museum. हमने संग्रहालय का दौरा कर लिया था. Passive, the museum had been visited by us. संग्रहालय का दौरा हमारे द्वारा किया गया था. Active, she had completed the homework. उसने होमवर्क पूरा कर लिया था. Passive, the homework had been completed by her. होमवर्क उसके द्वारा पूरा कर लिया गया था. Active, they had built the bridge. उन्होंने पुल का निर्माण कर लिया था. Passive, the bridge had been built by them. पुल का निर्माण उनके द्वारा किया गया था. Active, he had cleaned the kitchen. उसने रसोई साफ कर ली थी. Passive, the kitchen had been cleaned by him. रसोई उसके द्वारा साफ की गई थी. Active, we had organized the event. हमने कार्यक्रम का आयोजन कर लिया था. Passive, the event had been organized by us. कार्यक्रम का आयोजन हमारे द्वारा किया गया था. Active, the teacher had explained the lesson. शिक्षक ने पाठ को समझा दिया था. Passive, the lesson had been explained by the teacher. पाठ शिक्षक द्वारा समझाया गया था. Future perfect tense active passive. Active, I will have finished the work. मैं काम पूरा कर चुका होऊंगा. Passive, the work will have been finished by me. काम मेरे द्वारा पूरा कर लिया जाएगा. Active, she will have written a book. वह एक किताब लिख चुकी होगी. Passive, a book will have been written by her. एक किताब उसके द्वारा लिखी जा चुकी होगी. Active, they will have painted the house. वे घर को रंग चुके होंगे. Passive, the house will have been painted by them. घर उनके द्वारा रंगा जा चुका होगा. Active, he will have completed the project. वह परियोजना पूरी कर चुका होगा. Passive, the project will have been completed by him. परियोजना उसके द्वारा पूरी कर ली गई होगी. Active, we will have solved the problem. हम समस्या को हल कर चुके होंगे. Passive, the problem will have been solved by us. समस्या हमारे द्वारा हल की जा चुकी होगी. Active, you will have finished your homework. तुम अपना होमवर्क पूरा कर चुके होगे. Passive, your homework will have been finished by you. तुम्हारा होमवर्क तुम्हारे द्वारा पूरा कर लिया जाएगा. Active, they will have completed the task.
वे काम पूरा कर चुके होंगे। पैसिव, द टास्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। काम उनके द्वारा पूरा किया जा चुका होगा। एक्टिव, ही विल हैव रिपेयर्ड द कंप्यूटर। वह कंप्यूटर को ठीक कर चुका होगा। पैसिव, द कंप्यूटर विल हैव बीन रिपेयर्ड बाय हिम। कंप्यूटर उसके द्वारा ठीक किया जा चुका होगा। एक्टिव, शी विल हैव सung द सॉन्ग। वह गाना गा चुकी होगी। पैसिव, द सॉन्ग विल हैव बीन sung बाय हर। गाना उसके द्वारा गाया जा चुका होगा। एक्टिव, द टीम विल हैव won द मैच। टीम मैच जीत चुकी होगी। पैसिव, द मैच विल हैव बीन won बाय द टीम। मैच टीम द्वारा जीता जा चुका होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव। एक्टिव, आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। मैंने काम पूरा नहीं किया है। पैसिव, द वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय मी। काम मेरे द्वारा पूरा नहीं किया गया है। एक्टिव, शी हैज नॉट कुक्ड द डिनर। उसने रात का खाना नहीं बनाया है। पैसिव, द डिनर हैज नॉट बीन कुक्ड बाय हर। रात का खाना उसके द्वारा नहीं बनाया गया है। एक्टिव, दे हैव नॉट पेंटेड द हाउस। उन्होंने घर को नहीं रंगा है। पैसिव, द हाउस हैज नॉट बीन पेंटेड बाय देम। घर उनके द्वारा नहीं रंगा गया है। एक्टिव, ही हैज नॉट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। उसने समस्या का समाधान नहीं किया है। पैसिव, द प्रॉब्लम हैज नॉट बीन सॉल्व्ड बाय हिम। समस्या का समाधान उसके द्वारा नहीं किया गया है। एक्टिव, वी हैव नॉट विजिटेड द म्यूजियम। हमने संग्रहालय का दौरा नहीं किया है। पैसिव, द म्यूजियम हैज नॉट बीन विजिटेड बाय अस। संग्रहालय का दौरा हमारे द्वारा नहीं किया गया है। एक्टिव, शी हैज नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क। उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। पैसिव, द होमवर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय हर। होमवर्क उसके द्वारा पूरा नहीं किया गया है। एक्टिव, दे हैव नॉट बिल्ट द ब्रिज। उन्होंने पुल का निर्माण नहीं किया है। पैसिव, द ब्रिज हैज नॉट बीन बिल्ट बाय देम। पुल का निर्माण उनके द्वारा नहीं किया गया है। एक्टिव, ही हैज नॉट क्लीन्ड द रूम। उसने कमरे को साफ नहीं किया है। पैसिव, द रूम हैज नॉट बीन क्लीन्ड बाय हिम। कमरा उसके द्वारा साफ नहीं किया गया है। एक्टिव, वी हैव नॉट ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट। हमने कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया है। पैसिव, द इवेंट हैज नॉट बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय अस। कार्यक्रम का आयोजन हमारे द्वारा नहीं किया गया है। एक्टिव, द टीचर हैज नॉट एक्सप्लेन्ड द लेसन। शिक्षक ने पाठ को समझाया नहीं है। पैसिव, द लेसन हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। पाठ शिक्षक द्वारा समझाया नहीं गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव। एक्टिव, हैव आई फिनिश्ड द वर्क। क्या मैंने काम पूरा कर लिया है। पैसिव, हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाय मी। क्या काम मेरे द्वारा पूरा किया गया है। एक्टिव, हैज शी कुक्ड डिनर। क्या उसने रात का खाना बना लिया है। डॉट। पैसिव, हैज द डिनर बीन कुक्ड बाय हर। क्या रात का खाना उसके द्वारा बनाया गया है। एक्टिव, हैव दे पेंटेड द हाउस। क्या उन्होंने घर को रंग दिया है। पैसिव, हैज द हाउस बीन पेंटेड बाय देम। क्या घर उनके द्वारा रंगा गया है। एक्टिव, हैज ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। क्या उसने समस्या का समाधान कर लिया है। डॉट। पैसिव, हैज द प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड बाय हिम। क्या समस्या का समाधान उसके द्वारा किया गया है। एक्टिव, हैव वी विजिटेड द म्यूजियम। क्या हमने संग्रहालय का दौरा किया है। पैसिव, हैज द म्यूजियम बीन विजिटेड बाय अस। क्या संग्रहालय का दौरा हमारे द्वारा किया गया है। एक्टिव, हैज शी फिनिश्ड हर होमवर्क। क्या उसने अपना होमवर्क पूरा किया है। पैसिव, हैज द होमवर्क बीन फिनिश्ड बाय हर। क्या होमवर्क उसके द्वारा पूरा किया गया है। एक्टिव, हैव दे बिल्ट द ब्रिज। क्या उन्होंने पुल का निर्माण किया है। पैसिव, हैज द ब्रिज बीन बिल्ट बाय देम। क्या पुल का निर्माण उनके द्वारा किया गया है। एक्टिव, हैज ही क्लीन्ड द रूम। क्या उसने कमरे को साफ किया है। डॉट। पैसिव, हैज द रूम बीन क्लीन्ड बाय हिम। क्या कमरा उसके द्वारा साफ किया गया है। एक्टिव, हैव वी ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट। क्या हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है। पैसिव, हैज द इवेंट बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय अस। क्या कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किया गया है। एक्टिव, हैज द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। क्या शिक्षक ने पाठ को समझा दिया है। पैसिव, हैज द लेसन बीन एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। क्या पाठ शिक्षक द्वारा समझाया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव। एक्टिव, आई हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। मैंने काम पूरा नहीं किया था। पैसिव, द वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय मी। काम मेरे द्वारा पूरा नहीं किया गया था। एक्टिव, शी हैड नॉट कुक्ड डिनर।
उसने रात का खाना नहीं बनाया था। पैसिव, द डिनर हैड नॉट बीन कुक्ड बाय हर। रात का खाना उसके द्वारा नहीं बनाया गया था। एक्टिव, दे हैड नॉट पेंटेड द हाउस। उन्होंने घर को नहीं रंगा था। पैसिव, द हाउस हैड नॉट बीन पेंटेड बाय देम। घर उनके द्वारा नहीं रंगा गया था। एक्टिव, ही हैड नॉट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। उसने समस्या का समाधान नहीं किया था। पैसिव, द प्रॉब्लम हैड नॉट बीन सॉल्व्ड बाय हिम। समस्या का समाधान उसके द्वारा नहीं किया गया था। एक्टिव, वी हैड नॉट विजिटेड द म्यूजियम। हमने संग्रहालय का दौरा नहीं किया था। पैसिव, द म्यूजियम हैड नॉट बीन विजिटेड बाय अस। संग्रहालय का दौरा हमारे द्वारा नहीं किया गया था। एक्टिव, शी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क। उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। पैसिव, द होमवर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय हर। होमवर्क उसके द्वारा पूरा नहीं किया गया था। एक्टिव, दे हैड नॉट बिल्ट द ब्रिज। उन्होंने पुल का निर्माण नहीं किया था। पैसिव, द ब्रिज हैड नॉट बीन बिल्ट बाय देम। पुल का निर्माण उनके द्वारा नहीं किया गया था। एक्टिव, ही हैड नॉट क्लीन्ड द किचन। उसने रसोई साफ नहीं की थी। पैसिव, द किचन हैड नॉट बीन क्लीन्ड बाय हिम। रसोई उसके द्वारा साफ नहीं की गई थी। एक्टिव, वी हैड नॉट ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट। हमने कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया था। पैसिव, द इवेंट हैड नॉट बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय अस। कार्यक्रम का आयोजन हमारे द्वारा नहीं किया गया था। एक्टिव, द टीचर हैड नॉट एक्सप्लेन्ड द लेसन। शिक्षक ने पाठ को समझाया नहीं था। पैसिव, द लेसन हैड नॉट बीन एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। पाठ शिक्षक द्वारा समझाया नहीं गया था। पास्ट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव। एक्टिव, हैड आई कंप्लीटेड द वर्क। क्या मैंने काम पूरा किया था। पैसिव, हैड द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय मी। क्या काम मेरे द्वारा पूरा किया गया था। एक्टिव, हैड शी कुक्ड डिनर। क्या उसने रात का खाना बनाया था। पैसिव, हैड द डिनर बीन कुक्ड बाय हर। क्या रात का खाना उसके द्वारा बनाया गया था। एक्टिव, हैड दे पेंटेड द हाउस। क्या उन्होंने घर को रंगा था। पैसिव, हैड द हाउस बीन पेंटेड बाय देम। क्या घर उनके द्वारा रंगा गया था। एक्टिव, हैड ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। क्या उसने समस्या का समाधान किया था। पैसिव, हैड द प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड बाय हिम। क्या समस्या का समाधान उसके द्वारा किया गया था। एक्टिव, हैड वी विजिटेड द म्यूजियम। क्या हमने संग्रहालय का दौरा किया था। पैसिव, हैड द म्यूजियम बीन विजिटेड बाय अस। क्या संग्रहालय का दौरा हमारे द्वारा किया गया था। एक्टिव, हैड शी फिनिश्ड हर होमवर्क। क्या उसने अपना होमवर्क पूरा किया था। पैसिव, हैड द होमवर्क बीन फिनिश्ड बाय हर। क्या होमवर्क उसके द्वारा पूरा किया गया था। एक्टिव, हैड दे बिल्ट द ब्रिज। क्या उन्होंने पुल का निर्माण किया था। पैसिव, हैड द ब्रिज बीन बिल्ट बाय देम। क्या पुल का निर्माण उनके द्वारा किया गया था। एक्टिव, हैड ही क्लीन्ड द रूम। क्या उसने कमरे को साफ किया था। पैसिव, हैड द रूम बीन क्लीन्ड बाय हिम। क्या कमरा उसके द्वारा साफ किया गया था। एक्टिव, हैड वी ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट। क्या हमने कार्यक्रम का आयोजन किया था। पैसिव, हैड द इवेंट बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय अस। क्या कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किया गया था। एक्टिव, हैड द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। क्या शिक्षक ने पाठ को समझाया था। पैसिव, हैड द लेसन बीन एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। क्या पाठ शिक्षक द्वारा समझाया गया था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव। एक्टिव, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क। मैं काम पूरा नहीं कर चुका होऊंगा। पैसिव, द वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी। काम मेरे द्वारा पूरा नहीं किया गया होगा। एक्टिव, शी विल नॉट हैव कुक्ड डिनर। वह रात का खाना नहीं बना चुकी होगी। पैसिव, द डिनर विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाय हर। रात का खाना उसके द्वारा नहीं बनाया गया होगा। एक्टिव, दे विल नॉट हैव पेंटेड द हाउस। वे घर को रंग नहीं चुके होंगे। पैसिव, द हाउस विल नॉट हैव बीन पेंटेड बाय देम। घर उनके द्वारा नहीं रंगा गया होगा। एक्टिव, ही विल नॉट हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। वह समस्या का समाधान नहीं कर चुका होगा। पैसिव, द प्रॉब्लम विल नॉट हैव बीन सॉल्व्ड बाय हिम। समस्या का समाधान उसके द्वारा नहीं किया गया होगा। एक्टिव, वी विल नॉट हैव विजिटेड द म्यूजियम। हम संग्रहालय का दौरा नहीं कर चुके होंगे। पैसिव, द म्यूजियम विल नॉट हैव बीन विजिटेड बाय अस। संग्रहालय का दौरा हमारे द्वारा नहीं किया गया होगा। एक्टिव, शी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर होमवर्क। वह अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुकी होगी। पैसिव, द होमवर्क विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय हर।
होमवर्क उसके द्वारा पूरा नहीं किया गया होगा। एक्टिव, दे विल नॉट हैव बिल्ट द ब्रिज। वे पुल का निर्माण नहीं कर चुके होंगे। पैसिव, द ब्रिज विल नॉट हैव बीन बिल्ट बाय देम। पुल का निर्माण उनके द्वारा नहीं किया गया होगा। एक्टिव, ही विल नॉट हैव क्लीन्ड द रूम। वह कमरे को साफ नहीं कर चुका होगा। पैसिव, द रूम विल नॉट हैव बीन क्लीन्ड बाय हिम। कमरा उसके द्वारा साफ नहीं किया गया होगा। एक्टिव, वी विल नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट। हम कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर चुके होंगे। पैसिव, द इवेंट विल नॉट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय अस। कार्यक्रम का आयोजन हमारे द्वारा नहीं किया गया होगा। एक्टिव, द टीचर विल नॉट हैव एक्सप्लेन्ड द लेसन। शिक्षक ने पाठ को समझाया नहीं होगा। पैसिव, द लेसन विल नॉट हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। पाठ शिक्षक द्वारा समझाया नहीं गया होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव। एक्टिव, विल आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। क्या मैं काम पूरा कर चुका होऊंगा? डॉट। पैसिव, विल द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी। क्या काम मेरे द्वारा पूरा किया जा चुका होगा? एक्टिव, विल शी हैव कुक्ड डिनर। क्या वह रात का खाना बना चुकी होगी? पैसिव, विल द डिनर हैव बीन कुक्ड बाय हर। क्या रात का खाना उसके द्वारा बनाया जा चुका होगा? एक्टिव, विल दे हैव पेंटेड द हाउस। क्या वे घर को रंग चुके होंगे? पैसिव, विल द हाउस हैव बीन पेंटेड बाय देम। क्या घर उनके द्वारा रंगा जा चुका होगा? एक्टिव, विल ही हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। क्या वह समस्या का समाधान कर चुका होगा? पैसिव, विल द प्रॉब्लम हैव बीन सॉल्व्ड बाय हिम। क्या समस्या का समाधान उसके द्वारा किया जा चुका होगा? डॉट। एक्टिव, विल वी हैव विजिटेड द म्यूजियम। क्या हम संग्रहालय का दौरा कर चुके होंगे? पैसिव, विल द म्यूजियम हैव बीन विजिटेड बाय अस। क्या संग्रहालय का दौरा हमारे द्वारा किया जा चुका होगा? एक्टिव, विल शी हैव फिनिश्ड हर होमवर्क। क्या वह अपना होमवर्क पूरा कर चुकी होगी? डॉट। पैसिव, विल द होमवर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय हर। क्या होमवर्क उसके द्वारा पूरा किया जा चुका होगा? एक्टिव, विल दे हैव बिल्ट द ब्रिज। क्या वे पुल का निर्माण कर चुके होंगे? पैसिव, विल द ब्रिज हैव बीन बिल्ट बाय देम। क्या पुल का निर्माण उनके द्वारा किया जा चुका होगा? डॉट। एक्टिव, विल ही हैव क्लीन्ड द रूम। क्या वह कमरे को साफ कर चुका होगा? पैसिव, विल द रूम हैव बीन क्लीन्ड बाय हिम। क्या कमरा उसके द्वारा साफ किया जा चुका होगा? एक्टिव, विल वी हैव ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट। क्या हम कार्यक्रम का आयोजन कर चुके होंगे? पैसिव, विल द इवेंट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय अस। क्या कार्यक्रम का आयोजन हमारे द्वारा किया जा चुका होगा? एक्टिव, विल द टीचर हैव एक्सप्लेन्ड द लेसन। क्या शिक्षक ने पाठ को समझा दिया होगा? पैसिव, विल द लेसन हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। क्या पाठ शिक्षक द्वारा समझाया जा चुका होगा?